In today's video lecture, we will talk about the last category of drug that we used in the constipation is osmotic purgative. So osmotic purgative पढ़ने के लिए आपका जो concept clear होना चाहिए वो osmosis के बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि हम actually all the osmotic purgatives जो होते हैं वो osmotically active compounds होते हैं. तो before discussing the mechanism of osmotically active compounds means osmotic purgative drugs, we have to be very clear about the osmosis, so we can relate with the osmotic purgative with the osmosis mechanism, because the mechanism of osmotic purgative is somewhat directly related with the osmosis mechanism, right? So first we will talk about what is osmosis. In the osmosis there is must condition that there must be a semi permeable membrane, and here I wanted to represent that these are two chambers, right? First chamber and the second chamber. This is separated by a membrane that is semi-permeable membrane. Now, there is a concentration of solute in the red color I represented here. There is a solute concentration which is high in concentration. There is a less in concentration of solute. So, what is the concentration? As we know, through the semi-permeable membrane, the ideal condition for the osmosis is the solute will not have to cross this membrane. Only the water will move from one compartment to other compartment so that the concentration will become equilibrate. Means the concentration को maintain करने के लिए यहाँ water का movement होगा, solute will remain in particular compartment. Like here the solute will remain in this compartment and here the solute will remain in this compartment. Only the water content will come from here to here so that there will be higher water level, and that mix फर्दर जो हम कह सकते हैं कि दोनों की कंसंट्रेशन ऑस्मोलैलिटी इट्स सेम है. ठीक, तो इसमें हम बात कर रहे हैं, मींस हमने क्या बात की, देखिए ऑस्मोसिस में हमने कंडीशन बताई कि इन द ऑस्मोटिकली एक्टिव कंपाउंड द कंपाउंड विच इज रिमेन इन दिस compartment or the compound which is the solute which is remain in this compartment, or we can say the solute which is remain in this compartment, they do not go across the semi-permeable membrane, and they allow the movement of water until and unless the equilibrium will achieved. So we can say these solutes, as they are not able to cross this semi-permeable membrane, these solutes are osmotically active solutes, right? अब हम किस तरीके से देखिए रिलेट करेंगे ऑस्मोटिक परगेटिव से. हमने क्या बोला कि these solute that are not crossing the semi-permeable membrane is osmotically active solutes, या कह सकते हैं osmotically active compounds हैं वो जो solutes हैं. तो सबसे पहली कंडीशन की आई कि ऑस्मोसिस में हम देख रहे हैं solute cannot पास, जो सॉल्यूट पास नहीं हो रहा उसको हम बोल रहे हैं दीज आर ऑस्मोटिकली एक्टिव कंपाउंड्स. नंबर वन, ये कंडीशन आपकी क्लियर हो गई. ऑस्मोसिस की ये आइडियल कंडीशन है, ये होती ही होती है. फिर हम क्या बोलते हैं कि इफ सॉल्यूट पासेस, अगर सॉल्यूट पास करता है तब हम नहीं बोलेंगे कि वहां पे क्या प्रेशर जनरेट होने वाला है, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि आइडियल कंडीशन जो ऑस्मोटिक प्रेशर की है वो उसमें हम दिखाते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट. लेकिन यहां पे अब अगर चूंकि हम बात कर रहे हैं कि सॉल्यूट तो मूव नहीं कर रहा है, तब हम ये बोल रहे हैं कि वो ऑस्मोसिस का जो प्रेशर है वो क्रिएट होगा. लेकिन अगर जब सॉल्यूट नहीं क्रॉस हो रहा है, लेकिन अगर बात हम करते हैं कि इफ सॉल्यूट पास हो जाता है, अगर सॉल्यूट सेमी-परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो जाता है इधर से इधर या इधर से इधर, तो हम बोलेंगे कि ये ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूट्स नहीं है, ये ऑस्मोटिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है. इस मींस हमसे यहां से एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ये समझ में आया कि जो भी ऑस्मोटिकली एक्टिव कंपाउंड्स होंगे जो कि ऑस्मोटिक परगेटिव्स होते हैं, तो ऑस्मोटिक परगेटिव्स जो होते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स जो होते हैं, लाइक मैग्नीशियम के साल्ट्स होते हैं, सोडियम के साल्ट्स होते हैं, तो इनकी अगर हम बात करें तो ये भी एक ऑस्मोटिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं. मींस ऑस्मोटिकली एक्टिव कहने का मतलब कि उनको जिस चैम्बर में है, अब हम रिलेट करेंगे जिस ल्यूमेन में है, इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में, क्योंकि हमने उनका इंटेक किया, एडमिनिस्ट्रेशन किया, तो जिस ल्यूमेन में है वो मूव करके सेमी-परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इंटरस्टिशियम फ्लूइड में नहीं जाएंगे. अगर हम जीआईटी की बात कर रहे हैं तो जीआईटी में जो सॉल्यूट्स हैं, मींस हमने एक चेंबर की बात की, इस चेंबर की बात की, अब हम बोल रहे हैं कि ऑस्मोसिस की कंडीशन में आइडियल कंडीशन ये होती है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट नहीं होता. तो मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट नहीं होता, केवल मूवमेंट ऑफ वाटर होता है.
तो सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं है, इट मीन सॉल्यूट रिमेन कहां पे है, इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में है। तो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में होने की वजह से हम उसको बोल रहे हैं ये हमारा ऑस्मोटिकली एक्टिव कंपाउंड है, और इसीलिए वो टर्म जो दिया गया है यहां पे दिया गया है ऑस्मोटिक परगेटिव्स। तो ऑस्मोटिक परगेटिव्स का सिंपल मैकेनिज्म एक जो समझ में आ रहा वो ये, ऑस्मोटिक परगेटिव्स विल रिमेन, दे विल नॉट डाइजेस्ट नॉट एब्जॉर्ब। ये एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि ना किसी से डाइजेस्ट होंगे ना एब्जॉर्ब होंगे, इनको कोई एंजाइमेटिक या हार्मोनल मशीनरी इनको डाइजेस्ट नहीं करेगी, ना तो ये एब्जॉर्ब होने वाले हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, इट मींस ल्यूमिनल मेम्ब्रेन के थ्रू, इंटेस्टाइन की अगर हम बात कर रहे हैं। तो ये रिमेन रहेंगे कहां, इंटेस्टाइन की ल्यूमेन में, और जब रिमेन इंटेस्टाइन की ल्यूमेन में रहेंगे अपने साथ ये होल्ड किए होंगे क्या, वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल होल्ड किए होंगे, तब आप इससे रिलेट करिए ऑस्मोटिक परगेटिव की मैकेनिज्म को। नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द आइडियल कंडीशन ऑफ ऑस्मोसिस, क्या होती है, ऑस्मोटिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, वाटर का ऑस्मोसिस में क्या रोल है, ठीक। और एक हम जो पंच लाइन अगर बोलूं तो सॉल्यूट अगर क्रॉस नहीं करता है तो हम उसको, सॉल्यूट अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं ऑस्मोटिकली एक्टिव कंपाउंड्स, जो कि हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती है ऑस्मोटिक परगेटिव्स की। सेम कंडीशन में हियर आई वुड रिप्रेजेंटेड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ऑस्मोटिक परगेटिव्स, they perform their mechanism by two steps. In one way, let's suppose there is an intestinal lumen, and this lumen, as I already discussed, any kind of inorganic salt, their solute hooks the water, hold the water along with it, and solute cannot cross the semi-permeable membrane. In the same way, this is intestinal lumen, right? And this is fecal matter, and we have administered the osmotic purgative compounds like that in most of the cases the magnesium salt and the sodium salts, right? So the magnesium salt and the sodium salt, whatever we have taken, it just will mix with this that holding along with the water molecule, and that water molecule, as the salt compound does not digest, does not absorb थ्रू दिस ल्यूमिनल मेम्ब्रेन, बिकॉज उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ऑस्मोटिक परगेटिव है, उसको क्रॉस नहीं करेगा। जब रिमेन इसमें रहेगा तो दैट दे विल मिक्स, दिस ग्रीन कलर रिप्रेजेंटेड द फीकल मैटर। नाउ दिस फीकल मैटर, एज these compound here will be the magnesium or the sodium salt, whatever osmotic purgative we have taken, that is osmotically active, means it will not cross this membrane, it will remain in this luminal compartment and mix with this fecal matter, and once this salt mixed with this fecal matter along with the water, this fecal matter become hydrated, or we can say the fecal matter become soft, and this become higher in bulkiness. There are two conditions, this becomes soft and higher in bulkiness. Softness will promote the easier forward movement and outward movement through the rectum, and this will relieve in the constipation. Number one, this is the mechanism of osmotic purgative in one way, right? So this, if the volume of this fecal matter become enhanced due to the more and more salt and the water, so the wall of this intestine become distended, and as the bowel, this is bowel, and the bowel, or we can say the fecal matter become distended, this will increase the peristaltic reflexes, and peristaltic reflex will enhance the peristaltic movement, and this will increase the propulsion, means forward movement of the fecal matter, that relieves in the constipation. Now we will talk about the second way, that how does the osmotic purgative, basically if we talk about the magnesium, if we talk about specifically magnesium, how does it works through cholecystokinin as well. As the magnesium salts like magnesium sulfate or magnesium hydroxide, they have capability to stimulate the cholecystokinin hormones, and that hormones just start stimulating the cholinergic nerve ending, and through the cholinergic nerve ending there will be the release of which neurotransmitter, acetylcholine. So once the magnesium salt we have taken, let's suppose we have taken the magnesium salt as a osmotic purgative. Now this magnesium salt activate the cholecystokinin, and this cholecystokinin that releases from the mucous lining of the GIT tract, this cholecystokinin goes towards the cholinergic neuron, and cholinergic neuron basically which neuron, vagus nerve. Through the vagus nerve it stimulates the release of what, acetylcholine. It stimulates the release of what,
acetylcholine, and this acetylcholine, right? This acetylcholine means neuronal control of peristalsis. And once the acetylcholine come over here in this part, in this lining, this lining become more contracted, and the peristaltic become movement of the speed of peristaltic become more. So this will easy to defecate and that will help in the constipation. So these are the two mechanisms. How does the directly osmotically purgative and purgative compounds helps in a constipation? By increasing the water content, by increasing the bowel volume, and in a second way, specifically if we talk about the magnesium salts or hydroxide, magnesium hydroxide as the osmotic purgative compounds, it also activate the cholecystokinin mediated acetylcholine release that is responsible for ultimate increase in the peristaltic movement, that also indirectly promote, or we can say the relief in constipation by propulsion of fecal matter in a forward direction, or we can say the movement of the fecal matter out of the body become easier. So we have discussed this. Now all are the osmotic purgative, whether it is magnesium salt, whether it is sodium salts, right? Sodium sulfate or sodium phosphate, they all have overall same mechanism of action, right? They all have overall this mechanism of action. If we talk about the magnesium, additionally they will stimulate the cholecystokinin. But all the inorganic salt that we used as osmotic purgative, they perform their mechanism of action in this way, right? In this way. So we can differentiate to them between each other by the way of their dose, how much dose is required, because the dose for the different drugs or different osmotic purgative will be different. So this is the simple thing, this is not a technical thing, so I will not go into the detail of this discussion, but here I would like to mention that all inorganic inorganic salts, or we can say the osmotic purgative, only differ from the dose एंड द पैलेटेबिलिटी. कुछ की पैलेटेबिलिटी अच्छी होती है, कुछ की नहीं होती, कुछ की बिटर टेस्ट होता है, कुछ में रिस्क की क्या प्रोबेबिलिटी है, रिस्क किसमें ज्यादा है किसमें कम है, इस बेस पे वो अलग अलग होते हैं. नाउ let's suppose if we talk about the administration, if we talk about right magnesium sulfate, the dose will be 5 to 15 and the taste will be bitter. And if we talk about the magnesium hydroxide, the dose will be 30 ml. So dose इनकी अलग अलग है, वो आपका पार्ट है, वो this is. If we talk about the sodium sulfate, this is 10 to 15 milligram, 10 to 15 gram. This is bitter in taste, right? तो ओवरऑल जो चीज इसमें समझ में आई, ऑस्मोटिक परगेटिव का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके का है, किस तरीके से ऑस्मोसिस से रिलेट कर रहे हैं उसको डायरेक्ट. ऑस्मोटिक परगेटिव जो अपने अमंग जो कंपाउंड्स हैं, जो ड्रग्स हैं डिफरेंट ऑस्मोटिक परगेटिव, वो किस बेस पे डिफरेंट है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे डिफरेंस नहीं है उनमें मैक्सिमम, ज्यादातर उसमें डिफरेंस है कि उनका डोज क्या है, उनकी साइड इफेक्ट्स क्या हैं, और उनका क्या है पैलेटेबिलिटी कैसी है. तो इसी तरीके से जब इनका एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 150 और 100 टू 200 ml वाटर लेके उसके साथ वाटर के साथ उन ड्रग्स को मिला के उसमें उसको यूज करते हैं. अप्रोक्सीमेटली जो इसका इफेक्ट आता है वो 2 to 3 आवर के अंदर आता है, 2 to 3 आवर में उसका इफेक्ट आता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑस्मोटिक परगेटिव. इनसाइड द ऑस्मोटिक परगेटिव देयर इज वन मोर osmotic purgative, we can say that is lactulose. Lactulose, how does it, what is the mechanism of lactulose? As we have discussed here, आपको ये चीज, आपको ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल श्योर होना चाहिए ताकि आप में कोई कंफ्यूजन ना हो कि ऑस्मोटिकली एक्टिव कंपाउंड अगर बोल रहे हैं ऑस्मोटिक परगेटिव्स को, तो वाटर को कैसे होल्ड किया हुआ है. इसका बेसिक कंसेप्ट यहां से आता है. तो अब सेम वही कंडीशन है कि ऑस्मोटिक परगेटिव में क्या है, लैक्टुलोज. लैक्टुलोज के बारे में कुछ जो बेसिक चीज है, दिस इज रिक्वायर्ड लाइक 10 ग्राम बीडी ट्वाइस इन अ डे, एंड दिस इज प्लेंटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द लैक्टुलोज इनटेक और एनी काइंड ऑफ ऑस्मोटिक परगेटिव व्हेन वी टेक, देयर विल बी मस्ट वाटर रिक्वायर्ड. तो दिस इज सेमी सिंथेटिक कंपाउंड, दिस इज सेमी सिंथेटिक कंपाउंड, और स्पेसिफिकली दिस इज डाइसैकेराइड. एंड डाइसैकेराइड विच इज made up of, one is fructose, another is galactose, right? So one is fructose, one is galactose, means lactose is made up of fructose and galactose, monosaccharide, this will become disaccharide. Now
as this is osmotically active compound, so I already discussed it is neither digested nor absorbed, so remain in the small intestine retain. तो ये अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या रहने वाला है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहने वाला है. अब क्या होगा जब ये कोलॉन पे पहुंचेगा, देखो ये मैक्सिमम जो इफेक्ट आ रहे हैं आपके कोलॉन से आ रहे हैं, जब ये ब्रेक डाउन नहीं हुआ, एब्जॉर्ब नहीं हुआ ना, सेम वही मैकेनिज्म चल रही है उन्हीं की तरह. तो अब क्या होने वाला है, इनको जो लैक्टुलोज है, लैक्टुलोज को जो द बैक्टीरिया दैट विल बी प्रेजेंट इन द कोलॉन ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ इंडिविजुअल, तो वो बैक्टीरिया उस लैक्टुलोज को ब्रेक डाउन करेंगे एंड दे स्टार्ट ब्रेकिंग द लैक्टुलोज एंड लैक्टुलोज बिकम डिग्रेडेड इनटू द लैक्टिक एंड एस्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड एंड acetic acid, the formed product of the lactulose under the influence of colonic bacteria. This formed compound is more osmotically active. अब more osmotically active का मतलब क्या हो गया, यहां पे जो ऑस्मोटिकली एक्टिविटी थी वो बेसिस थी कि वाटर को कितना होल्ड करके रख रहा, और वो कंपाउंड इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा. तो जब हम बोल रहे हैं कि ये ज्यादा ऑस्मोटिकली एक्टिव है, दिस इज मोर ऑस्मोटिकली एक्टिव कंपाउंड एंड इट इज ऑब्टेनिंग. ये किस तरीके से ऑब्टेन हो रहा है, ये ऑब्टेन हो रहा है कि जो कोलॉन के बैक्टीरिया हैं वो लैक्टुलोज को फर्मेंटेशन कर रहे हैं, एंड दैट fermentation resulting in the formation of lactic acid and acetic acid which is more osmotically active compound. और ये जब more osmotically active compound बनेगा, this will produce their effect in 2 to 3 days. In 2 to 3 days the mechanism of action will be same as for the salt. कि वाटर को होल्ड करके वाटर की उसकी जो स्टूल है उसकी सॉफ्टनेस को इंक्रीज करेगा, प्लस उसके बाउल के कंटेंट को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ेगा, क्योंकि डिस्टेंडेड बॉल क्या करेगा, रिफ्लेक्स करेगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को. एक बात हम करते हैं लैक्टुलोज का, हम एक और इनटेक करते हैं हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में. हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में जो टॉक्सिसिटी होती है बेसिकली इट इज ड्यू टू द जस्ट बिकॉज ऑफ द अमोनिया, एंड एज वी हैव डिस्कस्ड द लैक्टुलोज इज फर्मेंटेड इन द कोलॉन. सो इन हेपेटिक इंसेफेलोपैथी द लैक्टुलोज 20 to 25% डिक्रीजेस द अमोनिया इन ब्लड. अब ये किस तरीके से इसका रिलेशन है कि ये अमोनिया को ब्लड में डिक्रीज कर रहा है. देखिए नॉर्मली लैक्टुलोज का फर्मेंटेशन कहां पे हो रहा है, कोलॉन में हो रहा है, बैक्टीरियाज कर रहे हैं उसको, और प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, जो ज्यादा एसिडिक, पहले से जो एसिडिटी थी वो एसिडिटी अब और ज्यादा है, क्योंकि जो कंपाउंड बन रहे हैं वो मोर एसिडिक बन रहे हैं. तो अगर मोर एसिडिक कंपाउंड बन रहे हैं तो जो स्टूल का पीएच है वो क्या होगा, स्टूल का पीएच आपका डिक्रीज होगा. मीन आपका अगर पीएच किस तरफ जाएगा, 3 2 1 इस तरफ मूव करेगा. पीएच का बढ़ने का मतलब पीएच का डिक्रीज होना वैल्यू का. तो हम क्या बोले, लैक्टुलोज जैसा कि हमने पढ़ा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोलोनिक बैक्टीरिया दे विल मेक द लैक्टिक एसिड एंड एसिटिक एसिड दैट इज मोर एसिडिक इन नेचर, एंड दिस विल बिकम डिक्रीज इन द पीएच ऑफ स्टूल. और जब स्टूल उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट का पीएच डिक्रीज होगा, दिस पीएच डिक्रीज होना मींस H प्लस आयन की प्रेजेंस का बढ़ना, और H प्लस आयन का ज्यादा होना. तो जब बैक्टीरिया इसको मेटाबोलाइज करेंगे तो बैक्टीरिया विल रिलीज व्हाट, अमोनिया, NH3, अमोनिया गैस. मोर एंड मोर लैक्टुलोज विल बी डिग्रेडेड बाय द बैक्टीरिया, मोर एंड मोर अमोनिया विल बी रिलीज्ड in the colon area. So once the ammonia is released and the product of the lactulose fermentation, which is lactic acid and acetic acid, decreases the pH, means they increase the availability of H plus ion. This NH3 and H plus ion react together and form NH4, which is not absorbed throughout the lumen or across the lumen. जब ये एब्जॉर्ब नहीं होगा, इट मींस NH3 जो था वो कन्वर्ट हो गया NH4 में, मींस मोर एंड मोर NH3 विल बी यूटिलाइज्ड टू कन्वर्ट इन द नॉन एब्जॉर्बेबल फॉर्म, क्योंकि NH3 तो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चली जाएगी, और वही हिपैटो इंसेफेलोपैथी की कुछ हद तक वजह है. तो जब हम NH3 को कन्वर्ट कर दे रहे हैं NH4 में, इस कंडीशन में पीएच को डिक्रीज करके, तो NH4 नॉन एब्जॉर्ब होगा, तो more and more there will be decrease in the ammonia level in the blood, and that's why we use the lactulose for the treatment of hepatic encephalopathy. Basically in the hepatic encephalopathy, because
हम इसमें जो लैक्टुलोज का नॉर्मली 10 ग्राम बीडी यूज करते हैं ट्वाइस इन अ डे, 3 टाइम्स इन अ डे 20 ग्राम यूज करते हैं। और यही वजह होती है कि लैक्टुलोज को हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में ट्रीटमेंट लेने की वजह से साइड में कई बार, चूंकि लैक्टुलोज की ज्यादा वजह है, इस वजह से क्या होता है, आपको कंडीशन हो सकती है डायरिया की। इसके साइड इफेक्ट में आपकी कंडीशन क्या हो सकती है, डायरिया की कंडीशन हो सकती है, राइट। क्योंकि वहां पे वाटर का कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा जब उसकी डोज को बढ़ाएंगे, या आप कह सकते हैं फ्लूइड या विस्कस स्टूल का फॉर्मेशन हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑस्मोटिक परगेटिव, लास्ट ड्रग दैट वी यूज्ड फॉर द कॉन्स्टिपेशन ट्रीटमेंट। सो आई होप कि आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। तो ऑस्मोटिक परगेटिव में जो बेसिकली आपको ऑस्मोसिस का बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, बेसिक्स, और उसके बाद आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ऑस्मोटिकली परगेटिव जो भी इंडिविजुअल ले रहा है वो ज्यादा से ज्यादा उस ड्यूरेशन में जब वो ऑस्मोटिक परगेटिव को ले रहा होगा तो ज्यादा से ज्यादा किसका इंटेक करेगा, मैक्सिमली वाटर का इंटेक करेगा, ताकि उसकी जो ऑस्मोसिस की एबिलिटी है वाटर को होल्ड करने की, उसको पार्शियल उसको सपोर्ट मिले और वो कंपाउंड्स मैक्सिमली इफिशिएंटली वर्क करें। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑस्मोटिक परगेटिव। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, और कुछ भी चीज़ें हैं जो नहीं समझ में आई आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, कंटेंट आपको समझ में आ रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।